आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम ए सुरेश ने रियासत के 4 ट्रिपल आईटीज़ में दाखिलों के लिए शेड्यूल जारी किया। इन्होंने बताया कि इस बार ट्रिपल आईटीज़ में दाखिलों के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। दाखिला इम्तिहान के लिए 10वीं जमात का निसाब रखा गया, जिसके 100 नंबर मुकर्रर किए गए। दाखिला इम्तिहान के लिए फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर मुकर्रर की गई है। इम्तिहान 28 नवंबर को मुनक्किद होगा। इसी दिन नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इम्तिहानात एपी के हर मंडल के अलावा तेलंगाना के 10 मुकामात हैदराबाद, रंगारेड्डी, खम्मम, मेदक, महबूबनगर, वरंगल, नलगुंडा, करीमनगर और आदिलाबाद में भी मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानी फ़ीस ओसी के लिए 300, बीसी के लिए 200, एससी एसटी के लिए 100 रुपये मुकर्रर की गई है। Today we have released the admission schedule for the admissions into triple ITs, 4 triple ITs that are located at Ongole, RK Valley, Nujividu and Sikakulam. This time we have come out with the pattern of conducting a common entrance test for 100 marks based on the 10th class syllabus. And based on the marks obtained in this CGT common entrance test, the admissions will be taken up in all the 4 triple ITs. The syllabus for this common entrance test is based on 10th class standards, and the examination would be for 100 marks, 50 marks for mathematics, and there will be 50 questions, and for physical sciences there will be 25 marks and 25 questions, and for biological sciences there will be 25 questions and 25 marks. Altogether there will be 100 marks. The examination would be conducted offline, and the centers will be located at every mandal head. आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम ए सुरेश ने बताया कि रियासत में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ 2 नवंबर से होगा। मुख्तलिफ जमातों के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाया गया है। हफ्ते में 2 से 3 दिन स्कूल रहेगा। नवंबर के आखिर तक स्कूल आधे दिन काम करेगा। हुकूमत ने स्कूली निसाब को कम किया है। 2 नवंबर से कॉलेजों का भी आगाज़ होगा। दिसंबर से कॉलेजों में क्लासेस का आगाज़ होगा। एपी हुकूमत ने कौमी एजुकेशन पॉलिसी के पेश नज़र कई तब्दीलियाँ की हैं। To start the schools from 2nd of November, going with a staggered schedule for all the students in different classes. For example, even classes 1, 3, 5, 7 on one day, and then odd classes 2, 4, 6, 8, 10 on some other day. That makes it 2 to 3 working days in a week for the students. So, and I'm sure in the very first month of November, we'll be going with a half-day classes. We'll be leaving the students soon after the afternoon lunch. And then at the end of the month we'll again reassess the situation based on the situation, based on the feedback. We'll improvise on that and we'll increase the number of working days. We are going for a multi-pronged strategy, like reducing the syllabus, reducing the holidays, increase the working hours, something like that. Wherever even the holidays are there, we want to make it as a learning day, and then we are thinking of, I'm not sure now, we are going for a blending mode of education. Even the colleges also from 2nd November for 2nd and 3rd years, and for first year UG and PG courses, the classes would commence from 1st of December as directed by the All India Council for Technical Education and the national bodies. So this schedule will be followed, and already APSI has come out with the detailed timelines of the entire academic calendar, and we have also come out with a lot of reform this year in line with the national education policy. हिंदुस्तानी बहरिया में आबदोज शिकन तोप बरदार जहाज INS कौराती बहरिया में शामिल किया गया। विशाखापट्टनम के नोएडा के यार्ड में मुनक्किदा तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुकुंद नरवणे ने बहरिया को जहाज़ सौंपा। इस बहरी जहाज़ को मुल्क में ही तैयार किया गया है। ये जदीद हथियारों से लैस है। आबदोज की निशानदही और इसे तबाह करने की इसमें सलाहियत है। Offset is it?
कर्नूल में आवाज़ कमेटी की जानिब से शहीद अशफाकुल्लाह खां की 120वीं यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। आवाज़ कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल हुसैन ने कहा कि इनकी तंजीम मुजाहिदीन आज़ादी को नई नस्ल से वाकिफ़ करवाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करती रही है। इस मौके पर तंजीम के रुकन मोहम्मद शरीफ ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में हिस्सा नहीं लेने वाली पार्टी आज मुस्लिमों को CAA और NRC के ज़रिए मुल्क से बाहर करना चाहती है। ये पार्टियाँ मुल्क की तारीख़ और जद्दोजहद आज़ादी से नावाकिफ़ है। शहर की आवाज़ कमेटी के तंजीम के तरफ से शहीद अशफाकुल्लाह खान का आज 120वां सालगिरह हमें चला रहे हैं और इसके साथ साथ गुलाम रसूल खान का भी, क्योंकि आज आवाज़ कमेटी समझती है कि बीजेपी वाले को RSS वाले को जागना चाहिए। मुसलमान बोले कि क्या चीज़ है, आज़ादी में कितना हिस्सा लेकर जान माल और कुर्बान किए हैं। कई हज़ारों के हाफिज़ साहब होंगे, आलिमा होंगे, उलमा होंगे, हमारे इंडिपेंडेंट फाइटर होंगे, आज़ादी में ज़्यादा हिस्सा लिए सुनो मुसलमान ज़्यादा है। ये RSS वाले, बीजेपी वाले, बजरंग दल वाले, जितने भी ये बीजेपी के कारकुन है, एक जना भी आज तक बीजेपी के ब्रिटिश वाले को बूटान झाँकते हुए उनका गुलामगिरी करे सुनो जो एक जना भी आज़ाद एक वैसा लड़े सुने। शर्म की बात है RSS वाले को, सावरकर वाले को जब गांधी को मारे तो RSS को बैन करने लगा तो अपॉलजी लेटर नेहरू के गवर्नमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को माफ़ी लेटर मांग को आको जो राय सुनो। आज हमारे आज़ादी के बारे में हमारा हिस्सा नहीं है, आज़ादी ये देश वाले नहीं, मुसलमान बोले तो यहाँ वाला नहीं बोला का जो बुरी नज़र से देखते हैं, गद्दार से देखते हैं। NRC CAA NPR के नाम से आज जो मुसलमान को इस देश से अलग करना चाह रहे, हमें बोल रहे कि इस देश में पाकिस्तान अलग हुआ को तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ से इंडिया से अलग होने के वास्ते मुसलमानों को पूरे को दावत दिए, तो यहाँ के मुसलमान पूरे उसके खिलाफ ठहर के हमें मुसलमान पूरे भारत के वास्ते ही हमें आज़ादी में लड़े हैं। भारत में ही रहते, भारत में मरते, भारत में मिटते, लेकिन हमें पाकिस्तान को नहीं जाते बोलकर बच्चे सो मुसलमान चाहे जो भारत में है सुनो। इसके ऐसे भारत में है तो मुसलमानों के बारे में आज जो RSS वाले होंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले होंगे, बीजेपी वाले होंगे, आज मुसलमान के ऊपर अंगली उठाने के वास्ते चांस नहीं है, क्योंकि उन सब जने गद्दारी करे सुनो, गुलामगिरी करे सुनो, आज़ादी में हिस्सा नहीं सुनो। वैसे सुनो को आज हुकूमत में आने की नौबत आ गई। हमें उनको ऐसे अर्ज करें कि तुम्हें आज देश में मुसलमान को दूसरे को अलग अलग करना चाह रहे, वह साजिश को आवाज़ कमेटी नहीं होने देती बोलकर हमें गुजारिश करें। मुसलमान हमें मरे तो भी है, हमारे जान गए तो भी हमें देश के वास्ते हमें कुर्बान कर देती बोल के नो कॉम्प्रोमाइज़ किसी का ये होगो, जेल में होगो, आज गल को फांसी के फंदे चढ़े तक भी हिंदुस्तान के नारे लेते हुए भी फांसी के फंदे दिए। ये सब भी हमारे मुसलमानों की तरफ से हमारे ये फ़ख्र की बात है। इसलिए हमें इनके अवेयरनेस के लिए इनके ये बर्थडे एनिवर्सरीज करके हमारे पब्लिक को अवेयरनेस प्रोग्राम। CPM लीडर A वंजा ने जगन हुकूमत पर फंड मैनेजमेंट में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही सैलाब मुतासरीन की मदद में तसाहुली का इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने फसलों की तबाही पर किसानों को जल्द अज जल्द मुआवजा देने की मांग की। Nearly 20,000 acres in Guntur districts and another 20,000 acres in Krishna districts completely drowned. No crop will come to the farmers. Government has to enhance the damage announcement. Actually previously it was only 6,000. Now the rights are demanding nearly 25,000 at least, because 75 to 80,000 they put in the crops, so the government has to announce the amount. AP के ज़िला अनंतपुर के रजापुर गांव में भारी बारिश से अभी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। पानी नेशनल हाईवे 63 पर जमा हो गया है। एक लॉरी पुल से गुजरने के दौरान बारिश के बहाव से तवाज़ुन खोकर उलट गई। मुकामी अवाम ने लॉरी ड्राइवर को रस्सी की मदद से बाहर निकाला, उसे बचाया। मूसलाधार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के कनकदुर्गा मंदिर के दर्शन किए। इन्होंने दशहरे के मौके पर मंदिर को नजराना भी पेश किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर मंदिर की तरक्की के लिए 17 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। वज़ीर आला के दौरे से चंद घंटे पहले पहाड़ का हिस्सा टूट गया। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे का CCTV फुटेज जारी किया गया है।
आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती की तामीर के लिए रखे गए संग बुनियाद के 5 साल मुकम्मल हो गए। अमरावती की जेएसी की जानिब से आज रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। अमरावती की तामीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संग बुनियाद रखा था। एहतजाजियों ने जगन पर इल्ज़ाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी वज़ीर आला का ओहदा संभालने से पहले किसानों से नाइंसाफ़ी नहीं करने का वादा किया था, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के बाद इन्होंने अमरावती से सदर मुकाम को हटाने का फैसला करके अपने वादे से मुकर गए। एहतजाजियों ने रियासत के 3 सदर मुकाम की मुखालफत की और अमरावती को ही सदर मुकाम बरकरार रखने की अपील की। एपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य शैलजानाथ ने मोदी और जगन को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने दोनों लीडरों पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। सियासी मफाद के लिए अवाम को नुकसान पहुंचाने का भी इन्होंने इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि अमरावती की तामीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संग बुनियाद रखा, लेकिन अमरावती को सदर मुकाम तब्दील करने पर वज़ीर-ए-आज़म खामोश है। जिला कर्नूल कलेक्टर ने कोरोना वायरस के मुतालिक शऊर बेदारी के लिए रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कोंडा रेड्डी से होते हुए जिला कर्नूल कलेक्ट्रेट जा पहुंची। इस मौके पर जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अलावा कर्नूल बल्दिया कमिश्नर और दीगर अफसरान शरीक थे। इस मौके पर कर्नूल बल्दिया कमिश्नर DK बालाजी ने कहा कि कर्नूल में कोरोना मुतासिरीन में कमी देखी गई है, लेकिन कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इन्होंने अवाम को एहतियाती तदाबीर जारी रखने की अपील की। कर्नूल बल्दिया दफ्तर के रूबरू CITUC तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासत की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बल्दिया कमिश्नर से वार्ड नंबर 19 और 20 में बुनियादी सहूलत फ्राहम करने का मुतालबा किया। CITU के रुकन साई बाबा ने कहा कि वार्ड नंबर 19 और 20 में बुनियादी सहूलियात नहीं है, जिससे अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसमें रोडा कालवा नाला नहीं सको, पानी पूरा बाहर आको। गणेश 2 में 100 ग्राम पानी के अंदर है। वो 10 दिन से वो पानी में संसार कर रहा है। वो म्यूनसिपल का कमिश्नर नगर तो MLA कौन तो भी आको देखे नहीं। पहले जरूरी वो पानी मोटर पानी खाली करने लगाना, नाले भरने लगाना। कलगोटा पूरा लेवल है, रोड के लेवल। वो कलगोटा में हाइट उठा को नाले का पानी कलगोट के नीचे गैसर करना। सीसी रोड आधा डाली वहाँ, अभी आधा नहीं डाली। वो सिवनी गुड़ी से जरा सामने गए तो डाली, उसके बाद अभी रोड ने डाली। पूरे कोटा में है, गरीबाद में है। वैसा BTR नगर में भी पूरा चिक्कड़। पिछले 30 साल से BTR नगर में नाला नहीं, रोडा नहीं, पानी नहीं। अब तो गवर्नमेंट को में पन्ना बन रही, हमारे करंट का पन बनती, पानी का बिल बनती। वैसा हमारे कोटमा का पन भी बन रहे हैं, कोटा का पन बन रहे, करंट बिल बन रहे, ये सब बन रहे। म्यूनसिपल वाले उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे। म्यूनसिपल वाले अगर मसला हल नहीं करे तो अभी पब्लिक को लेके जाके कलेक्टर ऑफिस को जाके कलेक्टर ऑफिस को मुठभेड़ कर बोल तो हमें डिमांड कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।